السلام علیکم، بول نیوز میں ہوں جواد کمال اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ 22 سال بعد آسٹریلیا کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں پاکستان نے شکست دے دی۔ 141 رنز کا ہدف گرین شرٹ سے دو وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ کینگروز کو 140 رنز پر ڈھیر کرنے میں نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی تین وکٹوں کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی 84 رنز کی شراکت نے پاکستان کو فتح کی منزل پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پرتھ میں پاکستانی شیروں کی گرجدار دھاڑ، کینگروز ہوئے خوف کا شکار۔ نسیم شاہ اور شاہین آفریدی نے حریف بیٹنگ لائن کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ 100 رن سے پہلے 6 بلے بازوں کو پویلین واپسی کا بندوبست کر دیا۔ باقی بیٹرز کا حارث رؤف اور محمد حسنین نے صفایا کیا۔ 140 رنز پر میزبان ٹیم کی اننگز کا قصہ تمام ہوا۔ پاکستان نے ہدف کا تعاقب شروع کیا تو عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کو جلد جدا کرنے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عبداللہ شفیق نے 37 اور سائم ایوب نے 42 رنز بنا کر پاکستانی اننگز کو استحکام دیا۔ کپتان محمد رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ حارث رؤف میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیتنے پر شاباش دی۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان کرکٹ ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم بولے قوم کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے، ٹیم پر فخر ہے۔ محسن نقوی نے کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑی قوم کے اعتماد پر پورا اترے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ گرین شرٹس نے خوشی کے لیے ترسی قوم کو جیت کا تحفہ دیا تو شائقین کرکٹ نے اپنے ہیروز کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہا رضوان اینڈ کمپنی نے جس طرح کینگروز کو شکست دی وہ کھلاڑیوں کی صلاحیت کے عکاس ہے۔ کہ پاکستان میچ جیت چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جیتتا رہے گا۔ پاکستان جیت چکا ہے، آسٹریلیا کو انہوں نے گرا دیا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ بہت خوشی پاکستان میچ جیتا، امید ہے کہ آئندہ بھی جیتے گا میچ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری کپتانی کی رضوان نے اور حارث رؤف بہت کمال عمدہ بولنگ۔ جی یہ بہت اچھی کامیابی ہے، یہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اتنے عرصے بعد ایک مقابلہ ہوا اور پاکستانی ٹیم کو فاتح حاصل ہوئی۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، پاکستان کی ٹیم نے اتنے سالوں کے بعد ہمیں جیت کی خوشیاں دکھائیں۔ اس نے تو ہمارے دل جو ہے نا جیت لیے، اور محمد رضوان نے جو کپتانی کی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو ہمارا دل ہی جیت لیا ہے کہ مقصد کیا کپتانی کی ہے اور کیا انہوں نے مینج کیا ہے ٹیم کو۔ انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے تو مایوسی کی خبریں مل رہی تھیں، لیکن یہ اس سے پہلے بھی ایک میچ جیتے اور آج 22 سال بعد سیریز جیتا۔ تو دوسری جانب آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارت کے پاکستان نہ آ کر کھیلنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے حکومت پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور بھارت کے نہ آنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ہے۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے کی رٹ آئی سی سی کو بھی شیشے میں اتار لیا۔ کھیل کے عالمی گورننگ باڈی نے پی سی بی کو بھارت کے پاکستان نہ آ کر کھیلنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ بھارتی ہٹ درمی پر پاکستان بھی نرمی برتنے کو تیار نہیں۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، بھارت کے نہ آنے سے متعلق آگاہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ہے۔ حکومت غور کر رہی ہے کہ اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستانی ٹیم بھی آئندہ کبھی بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گی۔ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشادہ دلی کا ثبوت دیا، بھارت نے اس کا غلط مطلب لیا، اب بھارت کو اس کی زبان میں ہی جواب دیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی پر پیچھے نہیں ہٹے گا، بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ نہ آئے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کسی ماڈل کو قبول نہیں کرے گا۔ کھیل ایکٹرک نے کراچی والوں پر ایک اور ظلم ڈھانے کی تیاری کر لی ہے۔ نادہندگان کے 68 ارب بھی بروقت بل دینے والوں سے اینٹھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ نیپرا میں رائٹ آف کلیم کی درخواست دائر کر دی۔ نادہندگان کے اربوں روپے ٹیرف میں شامل کرنے کی اجازت مانگی۔ کراچی والوں کی کمائی پر کے الیکٹرک کی پھر بری نظر۔ نادہندگان کے 68 ارب روپے بھی بروقت بل دینے والوں سے وصول کرنے کی تیاری کر لی۔ 2016 سے پہلے کے 26 ارب واجبات بٹورنے کا ارادہ کر لیا۔ نیپرا میں رائٹ آف کلیم کی درخواست دائر کر دی۔
2016 से 2023 तक नादहिंदगान के अरबों रुपए टैरिफ में शामिल करने की इजाज़त मांग ली। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने 14 एतराज़ात आयद किए हैं। नादहिंदगान की रकम को मशकूक करार दे दिया। पूछा है कि के इलेक्ट्रिक 2016 से पहले के 26 अरब रुपए क्लेम क्यों कर रहा है? क्या के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए? क्या के इलेक्ट्रिक के पास नादहिंदगान का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है? क्या के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान से वसूली के लिए कानून का सहारा लिया? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में टैरिफ में 5.2% इजाफा दोबारा क्यों मांगा गया? नेपरा ने दरखास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 दिनों में आरात तलब कर ली। नेपरा दरखास्त पर 21 नवंबर को समाअत करेगा। मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल अदा ही नहीं करते। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं PTI हुकूमत ने नुकसान करके पेट्रोल सस्ता किया था। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे नहीं थे। मजीद कहा कि बानी PTI को अमरीका ने हुकूमत से निकाला, ना जेल से निकाल सकेगा। समझता था PTI बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है, लेकिन अब समझ में आया वो सिर्फ उस मुदाखलत के खिलाफ है जो उनके हक में ना हो। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के मजालिम जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि कोई तो हो जो इस जालिम के इलेक्ट्रिक से निजात दिलाए। दिन को चैन ना आ रात को आराम। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों परेशान। सालाना मुनाफा अरबों में मगर कारकर्दगी सिफर। के इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए सफेद हाथी बन गया। शहर का बड़ा इलाका बिजली से महरूम रहने लगा। लियाकताबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाजमाबाद, न्यू कराची, मलीर, मार्टन रोड समेत कई इलाकों में 12 से 15 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। जितना पे कर रहे हैं उसका हमें यानी कि जो है ना क्वार्टर भी यानी कि फीडबैक यानी कि नहीं आ रहा, उसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लोड शेडिंग के साथ बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक कमरे का घर है तो 11,500-12 हज़ार रुपये हमारा बिल आया है। हमारी किस्मत ही ऐसी है। यहाँ तकरीबन जो है ना वो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है और हम तंग आ गए, यकीन करें। अलल सुबह और रात गए बिजली की बंदिश से स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तवील लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिल अदा करने वाले शहरियों ने कहा, खुदारा कोई तो हो जो कि इलेक्ट्रिक से शहर को निजात दिलाए। और बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठ हैं। हुकूमत 14,000 स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाहती है। इसकी मज़ाहमत करेंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ही झूठ और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। अगर महंगाई कम है तो सनतों में बेहतरी, बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोयटा के रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की तहकीकात में तेजी से पेशरफ जारी है। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता कर लिया गया। जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक के लिए भेजने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। कोयटा में दहशतगर्दी तहकीकात में पेशरफ्त। हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता कर लिया गया। जिस्मानी अज़ा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। तस्वीरों का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ने अमरीकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है। ये राइफल अफगानिस्तान में डॉलरों के एवज खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द रफीक ने US मेरीन कोर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। रॉ की मदद से BLA अमरीकी साजो सामान खरीद रही है। BLA मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है। रेलवे स्टेशन धमाके की जिम्मेदारी का लदम BLA ने कबूल कर ली और हमला आवर रफीक बजेंजो की तफसीलात और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी, हुकूमत इन एक्शन, हिकमत अमली तैयार, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने के अज़म का अहादा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है।
है। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, पुरअज़्म हैं कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ, खारजियों की पाक अफगान सरहद से दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 10 खवारिज जहन्नुम वासिल और 8 जख्मी हो गए। फोर्सेस ने एक कार्रवाई में 2 खारजी मारे, दूसरी कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक और जख्मी हुए। सुबह भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 खारजी हलाक और 6 जख्मी हुए। फितना उल खारिज को मुल्क से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाक फौज के जवानों ने खारजियों की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान स्पिन वाम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 ख्वारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारजियों की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाएगी। ख्वारिज स्पिन वाम के इलाके से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक हो गए और 2 जख्मी हुए। अलल सुबह भी पाक फौज ने ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, 6 जख्मी हुए। ख्वारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कराची में एक रोज के दौरान 4 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए। 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन, मली चेक पोस्ट नंबर 3, बल्दिया और साइड समेत दीगर इलाकों में हादसात पेश आए। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय पकड़ धकड़ में मसरूफ। दूसरी जानिब ट्रैफिक हादसात में शहरी जानों से जा रहे हैं। शहर में 3 घंटों में 4 ट्रैफिक हादसात हुए। मलीड चेक पोस्ट नंबर 3 के करीब कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए जाने वाले 8 साल बच्चे को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। बल्दिया मुआजकोट रोड पर डंपर और बस में तसादुम। जद में आकर मोटरसाइकिल सवार अब्दुल जब्बार जहां भाग हो गया। बल्दिया ही में बस बेकाबू होकर चिंची रक्शे से टकरा गई। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। साइड एरिया में नामालूम गाड़ी राहगीर पर चढ़ दौड़ी। राहगीर मौके पर ही जहां भाग हो गया। पाकिस्तान के दिल को आलूदगी ने जकड़ लिया। भारत से आने वाली मुज़र सेहत हवाओं के बाइस लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 753 तक पहुंच गई। ग्रीन लॉकडाउन भी काम ना आया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। पंजाब भर में जहरीली स्मोक के साए गहरे हो गए। फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 तक पहुंच गया। इधर मोटरवेज पर भी धुंध का राज बरकरार है, जहां हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसके बाद मोटरवेज को शदीद धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से स्मोक से छुटकारा के लिए 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश कराने का फैसला किया गया है। उधर औलिया के शहर मुल्तान में AQI 527 रिकॉर्ड किया गया, जहां इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब फिजा में जहरीले ज़र्रात के बाइस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां नाक, कान, गले, आँख और सीने के मरीजों में 2 गुना इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घर से निकलते हुए मास्क जरूर पहने। तो उधर पंजाब में शदीद स्मॉग और धुंध की वजह से मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ है। हद नज़र इंतहाई कम होने की वजह से मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख कर दी गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक स्मॉग और इंतजामी मसाइल से मुल्क भर की 34 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। मस्कत से मुल्तान की परवाज PK 172 को हद नज़र कम होने पर इस्लामाबाद, जबकि जद्दा से मुल्तान पहुँचने वाली निजी एयर की परवाज PF 723 को लाहौर उतारा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ओल्ड एयरपोर्ट लाहौर से खुसूसी तैयारे के जरिए सऊदी अरब रवाना हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर समेत 10 रुकनी वफ़द भी रवाना हुआ। वज़ीर आज़म रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा करेंगे। और अब कुछ बात गजा की सूरत हाल की। इसराइल हद से तजावुज़ करने लगा है। लबनान पर हमले तेज़ हो गए। शाम के शहर हलब और अदलिब में भी इसराइल ने हमले करके मज़ीद 31 अफराद शहीद कर दिए।
हद से तजावुज करता इसराइल आपे से बाहर हो गया। अरब मुसलमानों की नस्ल कशी पर उतर आया। फलस्तीन के बाद शाम और लबनान में भी जंग का दायरा बढ़ा दिया। इसराइल ने शाम के शहर हल्ब और अदलब में हमले करके मजीद 31 अफराद शहीद कर डाले। इसराइल फोर्सेज ने बालबक के इलाके को निशाना बनाया, जिसमें 20 अफराद शहीद कर दिए। इसके अलावा कनीसा नामी इलाके में 11 अफराद को शहीद और 14 को जख्मी किया। गजा में भी इसराइल की जारहियत जारी है। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,552 हो गई। पाकिस्तान ने इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका इजलास में किया गया, जहां अरब लीग और OIC रुकन मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। Unfortunately, after more than a year, the situation in the Middle East has worsened even before. Israel has been contravening all international norms and laws with impunity. The Israeli occupying forces continue to commit war crimes and crimes against humanity against the innocent Palestinians. During the last 1 year, brutalization of Palestinians by Israeli occupying forces has increased. Death toll of the innocent Palestinian has crossed 44,000, while more than 100,000 have been injured and millions displaced. Pakistan strongly condemns Israel's military strikes. और खेल के मैदान से खबर है, मुजफ्फरगढ़ में जारी नवीं थल जीप रैली इख्तिताम पजीर। प्रीपेयर्ड कैटेगरी का मैदान आसिफ फजल चौधरी ने मार लिया। फजल शादी खेल दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। जंगल में मंगल का समा, सनसनी अपने उरूज पर। जीत की कशमकश ने इवेंट का हुस्न दो आतिशा कर दिया। फर्राटे भरती, धुआं उड़ाती गाड़ियां हाजिरीन का लहू गरमाती रहीं। स्मोक ने मजा किरकिरा किया। 195 किलोमीटर का ट्रैक 30 किलोमीटर तक महदूद करना पड़ा। प्रीपैड कैटेगरी में आसिफ फजल चौधरी ने सबको पीछे छोड़ा। फैसल शादी खेल दूसरे और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली तीसरे नंबर पर रहे। थल जीप रैली के आखिरी रोज खवातीन कैटेगरी के मुकाबलों के साथ डर्ट बाइकर्स के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।